Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Harijan Panchayat Committee kalabu deki kendon hakmat ke sorkar ke bapak kenria eki lai spak saupu arteli ki longye na thamyo maulong bat kini ki kenthop ban ai mar ar spak square meter ke jaka bat ke pisa ban thawye kane kala pa ha ke jingelang ha pedeng kate ke committee bat ke sorkar jila ke balalong ha kala sngi ublai ha secretariat Habakran Chigilat Pathai Khubor, Unong Yalam ka committee u Gurjit Singh ulayatho ba ka Harijan Panchayat Committee kalabu diki kendon hakmat ka sorkar naga bentaban kendria na them yaw maulong. Kini ki kendon kilong ba ka sorkar ka dewan ai da ka jaka jong ka sorkar hi ka bah European World ka bam dunai ka shipho eka khanang banyo te ka yeng naga benta lai spa sapu arteli kilong yeng. Ula ong ba man ka wei ka long yeng ka dewan yo la kumno ar spa square meter ka jaka ban thau yeng bat ka sorkar ka deiru ban be pisa naga benta ban thawi kini ki yeng. Henry ula ong pat baya ki yeng an sa thau hi de ki nong shong bat da ka sorkar. Nalor kata ula ong ba barok ki long yeng ki de ban yo shong lang ha ka ju ka khando. Ulang ba ka de bandan ka jingya ai ba shim jaka ka bamut na ka benta ka lai e ka jaka ka badan ha tham yo maulong ka sorkar ka de ban ai ka la shipho e ka jaka ha European World. Na kaliang usimbut menteri rang ba Prestun Ting Song ula ong ba ka sorkar kalaya kren halor ki tigi kendon balabu da ki nongsa atham yo maulong ba dia kini an saya kren. Ula ong ru ba ka sorkar kat sapan khre ka jing ai jing mut ba kan sa ai kala sha ka Harijan Panchayat Committee khnang ba kan la ban yather bat ki nong shong hatham yo maulong bat hadien kata kan sadon biang ka jingyalang bat ka sorkar ban shim ya kirai. Uba Prestun ula ong ru ba ka Harijan Panchayat Committee ka kwa ba ye kitu ki yeng ki bala ai jing mut ban shna de ban nong try pateng la pateng. Tambah ula ong ba ka tanat pan roisor kan pej halor ki kendon baro. Henry ulayathu ba ka sorkar kala menjur ban penyo da ka jaka jong ka sorkar hi na ka benta ban pensyong pensa ye gitu ki bancha pen kan ria na them yo maulong. Again, we had a meeting with the HPC relating to the subject of relocation. In fact, again, they have submitted a proposal to us. Of course, they agreed for relocation, but certain conditions they have submitted to us where we discussed today. And again, ultimately what we were decided today from the government side, we will prepare a blueprint, detailed proposal from the government side. And then once that is done, we will communicate officially to them. And once that is done, they will sit down again with their residents over there and take a final decision. Next meeting, I think maybe by before 10 or 15 of next month, hopefully we'll be able to prepare all the detailed proposal to be submitted to them. And once that is done, then meeting will be held again. So what are these certain conditions that? No, the condition is like this. In fact, what forward? they wanted is, number one, they wanted, if possible, they wanted separate location altogether for all the 342 household who already inventorized way back in 2008. That is number one. Then number two, in fact, the question of whether once the unit is constructed, whether they will be able to own that unit generation to generation. These are the issues where they wanted to get their detail, as I said to you, from the government side. So as I said to you, now we have already instructed Urban Affairs Department to do all the details, proposal, and then we will submit it back to them. And once that is done, then meeting will be held and we'll take a final call. So one question, since this discussion between government and the HPC took place because of the High Court intervention, has the government appealed to them that they should also withdraw the petition that is there in the court so that these things will go smoothly? Yeah, no, in fact, right now, we see this is the second meeting on the basis of the High Court order, okay? And we will continue to do that till we reach to a conclusion where both sides, again from the government and as well as from the HPC, once we are agreeable, then we will jointly file affidavit to the Honorable High Court to close down the case.
C, they wanted that it should be shifted to one place. All of them, means all the 342. For that also we agreed. And they said that it should be also within the government revenue land. That also we agreed. Okay, that also we agreed. Therefore, right now, as I said to you, I can't say anything beyond that. Let the Urban Affairs Department work out all the details, and then we will send back those detailed blueprint to the HPC, and again after that we will sit down across the table once again. Any timelines are set for this exercise? No, in fact, we have already asked Urban Affairs Department to speed up this issue, and once that is done, we will send it to them. I think it will not take much, that maybe on or before 15th of May. उसमें हमने बताया उनको कि जो मतलब हमारा जो प्रपोजल है, जो हमारा रेजुलेशन वहाँ पे मीटिंग कमेटी में जो लोग एग्री हुए हैं कि मतलब जितने लोग हैं सबको गवर्नमेंट लैंड दे। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ने लैंड बना के देना, जैसा मतलब लैंड दे और घर बनाने के लिए उसका जो कॉस्ट है वो दे। तो हम मतलब अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो डिसाइड करेंगे, तो फिर दोबारा जो मीटिंग होगा उसमें बताएंगे। आपको घर नहीं चाहिए, आपको घर नहीं चाहिए, सरकार की तरफ से घर जो नहीं। मल्टी स्टोरी जो फ्लैट बना बोल रहे हैं ना, वो नहीं। हमने कहा है कि हमारा जितना फैमिलीज़ है वो सब फैमिली को 200 स्क्वायर मीटर पर फैमिली वो जो लैंड देने के लिए विद इन यूरोपियन वार्ड। कहाँ पर ये जगह? ये जगह तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा ना। घर बनाएगा कौन? गवर्नमेंट और आप? तो जो घर बनाने के लिए हमने बोला है कि घर बनाने के लिए जो मतलब कॉस्ट है वो दिया जाए हम लोग को। अपना से घर बनाएंगे? हाँ, अपना से घर बनाएंगे, क्योंकि ये जो पहले जो म्यूनिसिपल ने क्वार्टर्स बना के दिए हैं जहाँ पे भी, वो सब तो डैमेज हो गया। अभी 20 साल भी नहीं हुआ, सब घर टूट गया है। तो जो बिल्डर आते हैं वो मतलब घर बना देते हैं और वो लास्टिंग नहीं होता है। So how much will you have to pay to the government if the government is going to give you land? आप क्या सरकार को पैसे देंगे? नहीं, हम लोग क्यों पैसे देंगे? हम लोग तो जो हमारा पास लैंड है उसके एक्सचेंज में मांग रहे हैं। जैसा मतलब वो जो हमारा पास जो लैंड है वो 3.33 एकड़, 3 एकड़ से ज़्यादा है, ठीक है ना। वो ज़मीन को एक्सचेंज में हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो तकरीबन 9 एकड़ ज़मीन जो है, 9-10 एकड़ ज़मीन जो है वो हम लोगों को दे। But that land belongs to, I mean, हिमा मिलियम का लैंड नहीं है, क्योंकि हिमा मिलियम का लैंड था वो, लेकिन उसने तो दे दिया 1853 का, पहले तो उसने दे दिया ना वो लैंड हमारे कम्युनिटी को। तभी हमारा कम्युनिटी इतने सालों से वहाँ पे रह रहा है। वहाँ पे हमारा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो वो तो मतलब उनका मर्जी से, गवर्नमेंट का मर्जी से ही वहाँ पे सेटल हुआ ना। तो अभी गवर्नमेंट अगर हम लोग को चाहता है, हम लोग रीलोकेशन के अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो परमानेंट सेटलमेंट हो। गवर्नमेंट एग्री नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोगों के पास 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन था, आप मांग रहे हैं 10 एकड़ से ज़्यादा। तो वैल्यूएशन होगा ना ज़मीन का, वो ज़मीन का वैल्यू तो ज़्यादा है ना। तो मतलब कानून में तो वैल्यूएशन होता है ज़मीन का। तो जो वो वैल्यू का, जितना वैल्यू का वो ज़मीन है उतना वैल्यू का ज़मीन हम लोग को देंगे। वो मतलब हमने डिमांड किया है कि यूरोपियन वार्ड में देने के लिए ज़मीन देंगे और घर बनाने के लिए पैसे भी देंगे। पैसे दें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देंगे। तो वो मान गए? नहीं, वो बोले हैं कि प्रपोजल देंगे। अभी गवर्नमेंट बोला कि प्रपोजल देंगे, मीटिंग कैबिनेट का मीटिंग में डिसाइड करेंगे। जो हमने जो हमारा कमेटी में जो डिसाइड हुआ ना, जनरल बॉडी मीटिंग में जो डिसाइड हुआ, उसका ऊपर में वो लोग जो मीटिंग करेंगे, फिर जो उसका जो गवर्नमेंट का क्या व्यू है वो देंगे और प्रपोजल देंगे। आप बता सकते हैं आप क्या क्या कंडीशन रखा है? हम लोग वही कंडीशन रखा है कि जैसा जितना फैमिलीज़ है सबको 200 स्क्वायर मीटर घर दे और एक ही जगह में दे, जो लैंड दे ना 200 स्क्वायर मीटर लैंड, और जहाँ पे एक जगह में दे और यूरोपियन वार्ड के अंदर में दे। अगर गवर्नमेंट आपको एक ही जगह में नहीं दे सकता है जगह रहने के लिए, देने के लिए एग्री है गवर्नमेंट, ऐसी कोई कंसर्न नहीं है ना, क्योंकि वहाँ तो सेटलमेंट आज से नहीं है ना।
वो तो No, why I asked this because वो जो गवर्नमेंट क्वार्टर है ना, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। वो तो एम्प्लॉयज़ उनका जाना चाहता है जाएगा, नहीं जाना चाहता है नहीं जाना चाहेगा। लेकिन हमारा तो जो कॉलोनी का कंसर्न है, क्यों जो हम लोग इतने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो जो हमारा जो राइट है उसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं ना। जो एम्प्लॉयज़ तो बहुत एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट क्वार्टर देता है, देने के बाद में फिर उनका घर वहाँ पे है, वहाँ पे जब रिटायरमेंट हो जाता है तो फिर वहाँ पे जाके रहता है, वो लोग सेटल होता है। लेकिन तो ये सल्यूशन नहीं है। हम लोग चाहते हैं जो क्वार्टर्स देंगे, फिर वो जब अगर मान लीजिए वहाँ से हम लोग एग्री नहीं होंगे, रीलोकेट नहीं होगा, तो फिर दोबारा फिर वो लोग जाके वहाँ पे रहेंगे, तो ऐसा हल नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहता है कि रीलोकेट करना है तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन में रीलोकेट करना है। see you have गवर्नमेंट अपना मर्जी से, अभी देखिए हम लोगों को 2008 में सीएम ऑफ मिलियम ने लिख के दिया है कि ये जो ज़मीन है, ये उसका जो सीएम ऑफ मिलियम था 1853 में, उसने हमारा कम्युनिटी को दिया था। 2008 का जो कोर्ट में जब उसको बात होगा ना, तो कोर्ट में तो 2008 में जो लिख के दिया है, पहले जो लिख के दिया वही कोर्ट मानेगा ना। अभी जो गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट करवाया है वो किस तरह से करवाया है, तो फिर 2 करोड़ रुपया देने का क्या ज़रूरत था। तो ये बात मतलब गवर्नमेंट ने जो इस तरह से किया है ना, 4 साल जो बिता दिया, डायरेक्ट हम लोग से बात करने से बात अलग था, मतलब अभी तक शायद इसका हल भी हो जाता था। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने 4 साल बिता दिया, अभी 1 साल बचा है गवर्नमेंट का, 1 साल भी नहीं है, तो अभी मतलब ये बात के लिए गवर्नमेंट आया हम लोग के पास, तो हम लोग भी उसमें पॉजिटिव है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट हो। हम लोग तो वहाँ पे परमानेंट है, लेकिन ये लोग जिस तरह से गवर्नमेंट हमारा जो शोषण कर रहा है कि वहाँ पे जितना जो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है, घर बनाने के लिए परमिशन नहीं देता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कनेक्शन के लिए एनओसी नहीं देता है, पानी के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम वो नहीं देता है, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे ठीक नहीं करता है। तो स्लम जो एक तरह से बनाया वहाँ पे, वो तो गवर्नमेंट ने बनाया है, हम लोगों ने थोड़ी बनाया स्लम। अगर गवर्नमेंट इस तरह का परमिशन देता अगर हम लोगों को, तो वो स्लम नहीं होता था। अभी भी मैंने बोला है गवर्नमेंट को कि अगर आप लोग चाहते हैं कि स्लम के लिए हम लोग को वहाँ से हटाना चाहता है, तो हम लोग स्लम अपना से उसको सबको ठीक करेंगे, आप हमको परमिशन दीजिए, वहाँ पे स्लम दिखाई नहीं देगा। लोग भी चाहते हैं कि सेटलमेंट हो, जिस तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट हमारा अगेंस्ट चल रहा है ना, शुरू से ही जब से ये गवर्नमेंट आया हमारा अगेंस्ट चल रहा है ना, तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस तरह से लड़के कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर जो हमारी मांगे हैं अगर उसको गवर्नमेंट मान लेती है तो हम लोग हट जाएंगे वहाँ से। since now you're सेटलमेंट हो जाएगा तो हम लोग विड्रॉ करेंगे पिटीशन, वो तो दोनों साइड से होगा। जब ये हो जाएगा सेटलमेंट को ऑटोमेटिकली वो विड्रॉ हो जाएगा।